Welcome students. Today is the question and answer session number 5 from the chapter of motion in a straight line. ये motion in a straight line का session number 2 है and today we will be discussing 3 questions and these 3 questions were asked in the NEET examinations way back in I think 2015 and 2016. So these 3 questions are good questions. This one is a good question, and all the 3 are good questions. And so we will just try to solve it, and thereafter, if the time permits, because I am just now limiting my sessions to half an hour. So if the time permits, we will try to discuss a couple of questions other than these 3. So let's first of all discuss this question. The question is, if the vectors A and B are function of time, then they are orthogonal to each other at time t given by t is equal to, these are the values of the time, and we have to find the correct alternative. Orthogonal का मतलब होता है कि that means we have to find the a value of time at which these two vectors are orthogonal, means they are perpendicular to each other. So in this case, let us take the scalar product of these two vectors. Now the scalar product of two vectors is given by, let's say in this case it will be A dot B, which will be equal to mod A mod B cos theta, where theta is the angle between these two vectors. Now if these two vectors are orthogonal, then theta will be equal to 90 degree. ठीक है, when theta is equal to 90 degree, then cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 degree जो हो जाएगा, that will be equal to 0. So इसका मतलब ये हुआ कि when these two vectors are orthogonal to each other, then this value will become equal to 0. So हम क्या लिख सकते हैं, it implies that cos omega t I cap plus sin omega t j cap dot cos omega t by 2 I cap plus sin omega t by 2 j cap, this will be equal to 0. ठीक है, simple. Now we will find the scalar product of these two vectors. So what we will get the answer as cos omega t I cap dot cos omega t by 2 I cap. ठीक है, प्लस देखिए the scalar product of I and I, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1. क्यों होगा 1 होगा, यही फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे, बिकॉज I is the unit vector along the x direction. So the scalar product of I and I will be equal to 1, because the theta इस केस में क्या होगा, 0 हो गया, तो cos theta हो गया 1, एंड I की जो मैग्नीट्यूड है 1 है, तो 1 into 1 into 1 which is equal to 1. So I cap into I cap will be equal to 1, but I cap into j cap या I cap into k cap या j cap into k cap, they all will be 0, because the angle between this unit vector I और ये j, इसके बीच में जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. सो cos 90 0 हो जाएगा. इसी प्रकार से j cap और k cap, इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, इसी प्रकार से k cap डॉट I cap, ये भी आपका 0 हो जाएगा. सो यहाँ पर हमारे पास में बेसिकली क्या बचेगा, जो I cap डॉट I cap के साथ में जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है वही हम लिखेंगे. बाकी I cap डॉट j cap जो है वो हमारा 0 हो जाएगा. तो इसलिए मैं इसका इसको जब हम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज I cap डॉट j cap विल बी इक्वल टू 0. सिमिलरली j cap डॉट I cap भी 0 हो जाएगा. तो फाइनली हमारे पास में बचेगा साइन
ओमेगा टी जे कैप डॉट साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही दो एक्सप्रेशन हमारे पास में बचेंगे। नाउ आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 एंड जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद cos ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको, जैसे मैंने अभी सेशन नंबर 4 में बोला था कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगेन वही बेसिक मैथमेटिक्स का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। हमको ये पता है कि जैसे cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, ये जो है आपको पता होना चाहिए। एंड आई विल बी टेकिंग वन सेशन ऑन दी बेसिक मैथमेटिक्स ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोसीड फर्दर। अगर उसके बारे में आपको बेसिक मैथमेटिक्स में अगर आपको डाउट्स हैं, सो आगे जो फर्दर जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है। सो ये वाला जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ये कहते हैं दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज, ये हो गया आपका, अगर ये इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू, दिस एक्सप्रेशन विल बिकम इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, ये हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। क्यों? कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टी, ओमेगा टी बाई 2 क्या होगा, कॉस ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0। और वी कैन से दिस इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2। ठीक है, ओके। सो इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा टी बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये हो गया cos ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू cos पाई बाई 2। सो इट इम्प्लाइज दैट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, और इट इम्प्लाइज दैट टी विल बी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। सो यहाँ पर आंसर आपको जो सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑल्टरनेटिव सी। This is the correct answer, that is the time at which these two vectors a and b are perpendicular to each other or orthogonal to each other is given by t is equal to pi by omega। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगेन मैं बोलूँगा, this formula was applied here in order to find the value of t। So बेसिक मैथमेटिक्स की आपको एक अच्छी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बेसिक मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलेज हैं आपको वो आगे जो है काफ़ी यूज़ में आएंगे। एंड बेसिक मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली आपका जिस कैलकुलस है एंड आपका जिस ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है, तो इन सभी के ऊपर जो है वी विल हैव अ स्मॉल डिस्कशन विच विल बेसिकली नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 2 lectures। सो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला भी क्वेश्चन जो है आई थिंक नीट 2015 या 16 में पूछा गया। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड मे बी इन आई थिंक 2016 में भी आया है या 2017 में, आई डोंट रिमेम्बर, बट डेफिनेटली ये तीनों क्वेश्चन जो है वो नीट के ही हैं। नाउ वेलोसिटी है v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। ठीक है, तो where a and b are constants, we have to find the distance traveled by this particle in time between time 1 and 2 seconds। ठीक है, the velocity of the particle is given by this expression। So where t is the time in seconds। So इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v can be written as dx upon dt। देखिए अगेन यहाँ पे भी वही चीज़, you have to have a good
knowledge of basic mathematics. So dx upon dt will be equal to a t plus bt square. It implies that dx क्या हो जाएगा, dx will be equal to at plus bt square dt. Now we will be integrating on both the sides. अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो what will dx will be equal to, इसको इंटीग्रेट करेंगे at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है, dt. Now we have to find the distance traveled by this particle between time 1 and 2 seconds. So we have to integrate it from 1 to 2. अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे from 1 to 2, then we will get the distance traveled by this particle between time 1 second and 2 second. So it implies that x कितना हो गया, x is equal to integration of 1 2 ये हो जाएगा आपका at dt प्लस 1 2 bt स्क्वायर dt, ठीक है, ये हो गया. तो एक कांस्टेंट है तो हमने तो ए लिख लिया, और ये आपको हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 प्लस ये हो जाएगा बी कांस्टेंट है, सो टी क्यूब बाई 3 1 2, ठीक है, ये हो जाएगा, दिस इज एक्स, ठीक है. सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल बिटवीन 1 and 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, x, दिस विल बी इक्वल टू a कितना हो गया आपका, दैट इज t का वैल्यू हम 2 सेकेंड्स डालेंगे तो 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2a, ठीक है, माइनस 1 लगाएंगे माइनस a बाई 2 प्लस t की वैल्यू 2 लगाएंगे तो 2 to 4 तो 8 बाई 3, सो 8 बाई 3 b. t की वैल्यू जब हम लगाएंगे 1 तो इट विल बी इक्वल टू b बाई 3 माइनस b बाई 3, ठीक है. तो ये आंसर आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2 एलसीएम लेंगे 2 तो इट विल बी इक्वल 4a माइनस a दैट इज इक्वल टू 3a बाई 2 प्लस यहाँ पे एलसीएम 3 हो जाएगा, so it will be 8b minus b that is equal to 7b by 3. So यहाँ पर जो x है, this is the distance traveled by that particle in between, traveled by the particle between 1 second and 2 seconds. ठीक है, तो आंसर हो गया मेरा 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 2. तो ये आ गया 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 2. सो द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, सो दैट द करेक्ट आंसर इज ऑल्टरनेटिव बी, ठीक है. अच्छा, इसमें एक चीज और है, वेन एवर वी आर इंटीग्रेटिंग we will also get one constant of integration, but in this case what will happen, because we are finding the distance between the time 1 second and 2 second, that constant of integration will get cancelled out. So so that is the reason I have not just written it here, ठीक है. जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक constant of integration भी आता है और उसकी वैल्यू हम निकालते हैं based on the certain conditions which is given in the question. But because यहाँ पर क्या है, we have integrated this from 1 to 2, that so that constant of integration will get cancelled out. So वो cancel हो जाता है. So finally we will land up with this answer, ठीक है. Now we will do the third question. Now the questions which I have taken today are entirely different from each other, and this will be our a method of study, means I will be taking all the questions in all the sessions which will be entirely different from each other, and questions को repeat भी होगा, but that will be repeated only when I feel like that it needs to be repeated again. Now this question, that is question number 2. यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cards P and Q start from a point from the same time in a straight line and their positions are related by, ये दिया हुआ है, Px equal to
a t plus b t square and qx is equal to f t minus t square, where a, b and f are constant. So at what time will the cars have the same velocity? So velocity, this is the I think this is the displacement of the car with respect to the time. So px दिया हुआ है is equal to at plus bt square, और ये आपका हो गया qx is equal to ft minus t square. ठीक है. So अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. तो व्हाट वी विल गेट, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस 2bt, एंड दिस इज द velocity of this car at any time t. ठीक है, that is the, let's say I am denoting this by velocity of the car p. Similarly q दिया हुआ है, qx दिया हुआ है आपका ft minus t square. So इसको भी अगर हम करेंगे differentiate with respect to t, so what I will get is qx which is equal to f minus 2t. ठीक है, यहाँ पर क्या है, a, b and f are the constants. So this will be the velocity of the car q. Now ये पूछ रहा है कि at what time do these cars have the same velocity? It means that if vp is equal to vq, it implies that if, then दोनों को हम इसको बराबर कर देंगे, that is if a plus 2bt will be equal to f minus 2t. ठीक है. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है आपको 2bt है, इसको हम इधर ले लेंगे तो हो जाएगा 2bt प्लस 2t इज इक्वल टू f माइनस a को उधर ले लिया, t को उधर ले लिया, यहाँ पे t कॉमन कर लिया, 2b इसको कॉमन हम ऐसे लेते हैं, यहाँ पे 2t कॉमन हो जाएगा, 2t कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा b प्लस 1 इज इक्वल टू f माइनस a. इट इम्प्लाइज दैट t विल बी इक्वल टू f माइनस a डिवाइडेड बाई 2b प्लस 1. So the time at which these two cars will have the same velocity will be given by t is equal to f minus a divided by 2b divided by 2 ब्रैकेट में b प्लस 1. So f minus a divided by 2 b plus 1. So this is the time at which these two cars will have the same velocity. So this is how these three questions were supposed to be done, but the most important thing is that, as I have told you in the previous lecture, that the most important thing which you have to remember is that you will get only 1 minute to solve one question. ठीक है, फिजिक्स में और या केमिस्ट्री में या आपके जो भी दिस बॉटनी में एंड जूलॉजी में, यू विल बी गेटिंग 45 क्वेश्चंस एंड you will be getting 50 minutes to solve that one particular section. So approximately 1 मिनट ही मिल रहा है आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे स्पीड बहुत मैटर करेगी, और स्पीड आपको तभी आएगी जब आप जितने भी न्यूमेरिकल्स अवेलेबल हैं, जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आपकी किताबों में या डिफरेंट सोर्सेज में अवेलेबल हैं, जो कि पिछले 20 या 30 साल में पूछे गए, अगर आपने उसको कर लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी कि आप वो सब और हाँ, और साथ साथ में उन क्वेश्चंस, उसी तरह के क्वेश्चंस आपने जो है काफ़ी प्रैक्टिस भी किया है, तो देयर इज़ अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी कि आप अपने पेपर्स को पूरा दैट स्टिपुलेटेड जो 200 मिनट का टाइम दिया है आप कंप्लीट कर पाएंगे. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. क्वेश्चन आसान है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट. ठीक है, सो प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको. You have to find all the different types of problems which have been asked in the last 30 years, 20-30 years. उनको आपको सेग्रीगेट करना है. इसके बाद में उसी तरह के क्वेश्चन आपको जितने भी अलग अलग सोर्सेज में मिलते हैं वो आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, आपकी कंपटीशन स्किल को बढ़ाना है. एंड इफ़ योर कंपटीशन स्किल जो है अगर आप बढ़ा सकते हैं, आपकी
आपको इतनी बढ़ानी है कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। नीट में क्वेश्चन आसान आते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन, बट द ओनली थिंग विच यू हैव टू वरी अबाउट इज द टाइम which has been allotted for one question, ठीक है। So anyway, we will continue to do the questions from this chapter, that is the motion in a straight line, and in the next question and answer session, that is the session number 6, we will be taking 3 or 4 more questions, and those questions will again be of a totally different from each other. अभी तक जितने भी कराए हैं सब बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तो जो अभी सेशन 6 में भी जो मैं क्वेश्चंस लूँगा वो भी टोटली डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, सी यू सून।